Hello everybody, welcome back. So today we are going to have a next session which is related to consideration, a next topic which is again very important. So let us deal with consideration out here. Students, you have to cover up certain definition and then what are the legal rules of consideration and what are the different kinds of consideration. Okay, so definition कर लेते हैं पहले. आपको sections याद है ना सारे? Contract was section 2 subsection H, agreement was section 2 subsection E, offer was section 2 subsection A, acceptance was section 2 subsection B, and consideration is section 2 subsection D, small d. Okay, so that is D for dog. ठीक है. सेक्शन 2 कंसिडरेशन बोलता है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. प्रोमिसर का मतलब है जो बंदा प्रॉमिस करता है तो उसको प्रोमिसर बोलते हैं. ठीक है. और जो तुम्हारा जिसको तुम प्रॉमिस कर रहे हो, सो दैट इज़ एन प्रोमिसी. So when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing, such an act or abstinence or promise is called the consideration for the promise. I know it is big confusing part for understanding of this definition, but simple है. आपको तीन चीज़ें इसमें फोकस करनी है. ठीक है. एक तो कंसिडरेशन moves from the desire of the promiser to the promisee or any other person. ठीक है. और उसके बाद जो तीन चीज़ें याद करनी है आपको कि past consideration, present consideration and future consideration. past consideration का मतलब है has done or abstained from doing. मतलब abstained में आपको ed ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. abstain वाले वर्ड में आपको ed ऐड करना पड़ेगा. so has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing something, to such act, abstinence or promise, he is called the consideration for the promise. I know you are not able to understand. ये जो abstain from doing है, abstains from doing है and promises to do or abstain from doing है. First वाला is a past consideration, second वाला is a present consideration and the third one is a future consideration. देखते हैं. Has done or abstained from doing, is it clear? तो वो past consideration कैसे हुआ? लाइक फॉर एग्जाम्पल अपने पास्ट में फादर ने अपने बेटे के नाम पे विल बना के रखी थी. ठीक है. अभी नाउ व्हेन द फादर हैज़ मेड अ विल फॉर हिज सन. ठीक है. कि मेरे डेथ के बाद मेरा जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे बेटे को ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो दैट इज़ अ पास्ट कंसिडरेशन. आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द होल प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू द सन. ठीक है. तो वो पास्ट कंसिडरेशन है. प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आज तुमने कोई कमोडिटी खरीदा और उसका पैसा तुमने अभी ऑन द स्पॉट पे किया. सो यू purchase any commodity and you pay for it, so that is the present consideration. and future consideration का मतलब होता है करके कि हमने बिल पोस्ट पेड बिल जो हम लोग पे करते हैं, दैट्स अ फ्यूचर कंसिडरेशन. क्योंकि अभी हम लोग ने पूरा महीना यूज़ कर लिया कार्ड और फिर जब अपना बिल आएगा तब हम लोग उसको बाद में पे करेंगे. सो एनी काइंड ऑफ एन पोस्ट पेड पेमेंट्स आर कॉल्ड एज फ्यूचर कंसिडरेशन. सो कंसिडरेशन ये डेफिनेशन में आपको तीन चीज़ें करनी है. हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, और एब्सटेन्ड में ईडी आएगा. डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, अभी एब्सटेन्स में सिर्फ एस आएगा. प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इज इट क्लियर? इसमें कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एब्सटेन वर्ड आएगा. ठीक है. टू सच एक्ट, एब्सटेनेंस और प्रॉमिस ही सेड टू मेक अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. ठीक है. तो या तो वो हाँ बोला तो एक्ट होगा, मना किया तो एब्सटेनेंस होगा. ठीक है. और अगर फ्यूचर में जाके करने वाले तो प्रॉमिस होगा, तो फिर उसको कंसिडरेशन बोलते हैं. ठीक है. Now when I'm talking about the legal rules of the consideration, you have to understand what are the different legal rules of consideration. सबसे पहले consideration must move at the desire of the promiser. उसकी शुरुआत पहले promiser करेगा. Like suppose अगर मैं आपको कोई consideration दे रही हूँ, so I become a promiser, तो वो मुझसे शुरुआत होगा. So that is consideration should be must move at the desire of the promiser. इसमें grammar बहुत important है बेटा. must वाला word आपके लिए बहुत important है. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इज इट क्लियर? फिर वो कहाँ से जाएगा? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. पहले वो प्रोमिसर के पास से जाएगा और फिर वो किसके पास से जाएगा? या तो प्रोमिसर, प्रोमिसी, या तो कोई एनी अदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक लेडी थी, शी वॉज डाइंग एंड एट द टाइम ऑफ अ डेथ व्हाट शी डिड वाज, उसने अपनी बेटी को बुलवाया और उसको अपना सारा प्रॉपर्टी का पेपर्स, अपना विल, सब कुछ उसको दे दिया. और उसको बोला करके कि एवरी ईयर तेरे को ये प्रॉपर्टी में से एनुअली तुझे अपने अंकल को इतना पैसा पे करने का है. ठीक है. तो द लेडी, जो ओल्ड लेडी दे रही है, वो प्रॉमिसर है.
अपनी उसकी बेटी को दे रही है तो बेटी प्रॉमिसी है, ठीक है। और ये जो अंकल होगा जिसको उसको एवरी ईयर पे करना है वो एनी अदर पर्सन होगा। तो ये बेटी ने क्या किया, अपने अंकल को कुछ दिया ही नहीं। इज इट क्लियर एवरीबडी? एंड वन फाइन डे द अंकल केम टू नो कि अरे मेरे नाम पे मेरी बहन ने कुछ लिख के रखा है, वो मुझे मिल नहीं रहा है, आई शुड गेट इट, ठीक है। तो अंकल ने केस फाइल कर दिया। तो केस फाइल करने के बाद पता चला कि विल में लिखा हुआ है कि ये अंकल को एनुअल बेसिस पे कुछ ना कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीबडी? तो यहाँ पे अंकल इज एनी अदर पर्सन। तो ये जो कंसिड्रेशन है वो प्रोमिसर के पास से भी आ सकता है, प्रोमिसी के पास से भी आ सकता है, या एनी अदर पर्सन के पास से भी आ सकता है। तो ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कंसिड्रेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। उसकी शुरुआत हमेशा प्रोमिसर करेगा। फिर वो कौन किससे होगा, प्रोमिसी या तो वो एनी अदर पर्सन होगा। नेक्स्ट पॉइंट सेज इट कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटेड। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। एग्जीक्यूटेड मतलब आपको पता है हमने जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स किया था तब मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटेड का मतलब है दोनों पार्टी ने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। एग्जीक्यूटरी में एक ने परफॉर्म किया, एक फ्यूचर में जाके करेगा, या दोनों फ्यूचर में जाके करेंगे। तो कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। इट सेज कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। डेफिनेशन में बताया मैंने तुमको, पास्ट कंसिडरेशन फादर ने अपना विल बना के रखा था, पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट तुम शॉपकीपर के पास जाते हो, कुछ चीज़ें लेते हो और उसको पैसा पे करते हो, प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन में पोस्ट पेड जो आप बिल पे करने वाले हो वो फ्यूचर कंसिडरेशन। तो ये लोग बोलते हैं कि मे बी कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। Then it says consideration need not be adequate. Consideration need not be adequate का मतलब है सपोज इफ आई बाय आईफोन, ठीक है, अभी उसका प्राइस है 80,000, 90,000, 1,00,000 रुपीज़। मैंने जो आईफोन खरीदा उसका प्राइस 1,00,000 रुपीज़ है। जब मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो उसका फीचर्स और फंक्शंस और जो ऑपरेशन है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो मैंने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं इसको बेच दूँ। इज इट क्लियर? सो इट वॉज माई सिस्टर एंड आई सोल्ड हर माई फोन आईफोन फॉर ₹25,000। सो पीपल आर क्वेश्चन, अरे तू पागल है क्या, 1,00,000 का फ़ोन तूने 25,000 में बेच दिया? इज इट क्लियर? आई सेड दैट इज़ माई विल एंड माई विश एंड माई फ़ोन, सो द अमाउंट विल बी ऑल्सो डिसाइडेड बाई मी। हु आर यू टू टेल मी कि मेरे को 25 में बेचना चाहिए, 50 में या 75 में? इज इट क्लियर? सो इफ इट इज़ माई फ़ोन आई कैन सेल इट फॉर 25,000, फॉर 2,500 और फॉर 25 रुपीज़। पैसा आने से मतलब है ना। सो इट सेज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। नीड नॉट बी एडिक्वेट का मतलब होता है करके कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है बेटा कंसिडरेशन पे कि इतने में ही बिकना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। सो देर इज़ नो फिक्स अमाउंट और फिक्स वैल्यू फॉर इट। आपको जितने भी अमाउंट में उसको बेचना है आप बेचो, पैसा बीच में आना चाहिए। सो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट कि लॉ में या एक्ट में कहीं पे भी फिक्स नहीं दिया कि अगर तूने 1,00,000 का फ़ोन खरीदा तुझे 80,000 में बेचना पड़ेगा, तुझे 90,000 में बेचना पड़ेगा। ऐसा कहीं पे भी लॉ में लिखा हुआ नहीं है। सो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। वो तेरा फ़ोन है, तूने पैसा डाला है, वो तेरी मर्जी कि तू उसको कितने अमाउंट में बेचना चाहता है। देन सेज परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म का मतलब होता है कि कंसिडरेशन में अगर दोनों पार्टीज कंसिडरेशन में आ गए तो वो परफॉर्मेंस दोनों को बाइंड करता है। प्रोमिसर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा और प्रोमिसी को भी करना पड़ेगा, और दोनों उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पे लीगली बाइंड हो जाते हैं। एंड वंस दे आर लीगली बाइंडेड तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया, मैंने कंसिडरेशन दे दिया, देन आई एम ऑल्सो सपोज टू परफॉर्म। और अगर सामने वाले पार्टी ने भी कमिटमेंट दे दिया है और उसने प्रॉमिस किया है कि वो ले करेगा तो फिर उसको करना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ योर सिक्स्थ पॉइंट, कंसिडरेशन, आई एम सॉरी, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल का मतलब होता है कि वो इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। रियल का मतलब है लाइक सपोज जैसे आईफोन वाला एग्जांपल, मैं लेक्चर ले रही हूँ क्लास में और मैंने बोला कि बेटा मेरे पास आईफोन है, अगर किसी को उसको खरीदना है, मैंने उसको 1,00,000 में खरीदा पर मैं अभी उसको 25,000 में दे रही हूँ, एनीबडी इंटरेस्टेड तो आप मुझसे खरीद सकते हो। नाउ एवरी डे स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, मिस आप वो आईफोन लाने वाले थे, बताने वाले थे कैसा है। मैंने बोला चल ठीक है ना, कल देखते हैं। फिर से कोई मुझे पूछता है करके कि मिस आप आईफोन लाने वाले थे ना, क्या हुआ? मैंने बोला हाँ ठीक है बाद में। मतलब मैं जो बोल रही हूँ आई एम नॉट अप टू माई वर्ड्स, इट इज़ इल्यूजरी, इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ फेक। मतलब मेरे को परफॉर्म ही नहीं करने का है, ठीक है। सो कंसिडरेशन इल्यूजरी नहीं हो सकता है, द कंसिडरेशन हैज़ टू बी रियल। इज इट क्लियर?
अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को आईफोन बेचना है तो आई हैव टू गेट इट टू द क्लास, शो इट टू माई स्टूडेंट्स, एंड इफ दे आर ओके विथ इट आई हैव टू गो अहेड विथ इट. इज इट ओके? So that is consideration must be real. That is your seventh point. And the last point says consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. मतलब कहीं पे भी वो गलत इरादे से किया हुआ नहीं होना चाहिए. कंसिड्रेशन कभी भी गलत इरादे से किया हुआ नहीं होना चाहिए. मस्ट नॉट बी अनलॉफुल. इज इट क्लियर? अगर तुम्हारे कंसिड्रेशन करने की वजह से अगर कुछ भी गलत होता है सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. सेकेंड, इमोरल, जैसे चाइल्ड लेबर करना, डाउरी लेना, इसे क्लियर है, डोमेस्टिक वायलेंस करना, तो वो इमोरल है, वो कंसिड्रेशन नहीं होगा. एंड नेक्स्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब जो तुम सोसाइटी के खिलाफ जाके करते हो, सो दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. सो इवन दैट इज नॉट अलाउड. सो कंसिड्रेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, immoral or opposed to public policy. Is it okay? So there are 8 legal rules of consideration. We will revise all one by one. The first one says consideration must move at the desire of the promisor. वापस सुनो बेटा. Consideration must move at the desire of the promisor. अगर मैंने दिया है so it will move from my end. सेकेंड, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. याद है हमने वो लेडी वाला एग्जांपल दिया था जहाँ पे वो अपनी बेटी को पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही है और उसको बोल रही है कि मेरे भाई को हर साल इसमें से इतना अमाउंट दे देना. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन इज द लेडी हु इज़ गिविंग इज़ अ प्रोमिसर. अब उसकी बेटी इज़ अ प्रोमिसी और जिसको बोला है देने के लिए अंकल को, सो द अंकल इज़ एन एनी अदर पर्सन. सो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी, प्रोमिसर, प्रोमिसी और इट कैन बी एनी अदर पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट बोलता है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टी ने परफॉर्म कर लिया, कंसिडरेशन किया था और परफॉर्म भी कर लिया. एंड एग्जीक्यूटरी मतलब एक पार्टी ने परफॉर्म किया है, एक फ्यूचर में जाके करेगा, या तो दोनों फ्यूचर में जाके करेंगे, तो उसको एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ये तो मैंने तुमको डेफिनेशन में बताया. कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है. Consideration need not be adequate is the fifth point. I repeat, please check with me. Consideration need not be adequate. Adequate का मतलब होता है कि वो enough कहीं पे भी mention नहीं है. आपको जो अमाउंट में डील करना है आप उस अमाउंट में डील कर सकते हो, फिर वो 1 रुपया हो, 5 रुपया हो या वो 10 रुपया हो. सो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ विच what one is legally bound to perform. I repeat, performance of what one is legally bound to perform. उसका मतलब होता है कि अगर तुमने कंसिडरेशन दिया है और सामने वाले पार्टी ने भी कंसिडरेशन दिया, तो आप भी बाउंड हो परफॉर्म करने के लिए और सामने वाला भी बाउंड है परफॉर्म करने के लिए. इट्स इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल. इल्यूजरी नहीं होना चाहिए बेटा. मैंने आपको बोला ना, अगर मेरे को आईफोन बेचना है तो एक्चुअली मैंने क्लास में लाके आपको बताना चाहिए कि भाई ये फ़ोन है और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप उसको खरीदो. सो इट मस्ट बी रियल, इट शुड नॉट बी इल्यूजरी. एंड द लास्ट पॉइंट सेज कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, वो इमोरल नहीं होना चाहिए और वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए. अगर वो ऐसा होता है देन दैट इज़ नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है. The next part of consideration is suit by a third party to a contract. बेटा जनरली रूल क्या है? There are two rules of consideration. एक, stranger to a contract cannot sue upon it. Stranger to a contract cannot sue upon it का मतलब है कि अगर तू कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो तू कॉन्ट्रैक्ट में सू भी नहीं कर सकता. बट हमको लॉ में उसके एक्सेप्शंस देखने हैं कि वो पार्टी स्ट्रेंजर है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है और वो केस फाइल कर सकता है. ठीक है. तो मैंने बोला सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट में. इट्स अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन. देखो कंसिडरेशन में पहले तुमने डेफिनेशन किया मेरे साथ, फिर वो 8 रूल्स किए मेरे साथ. ठीक है. एंड नाउ दिस इज द थर्ड टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे थर्ड पार्टी इज़ नथिंग बट द स्ट्रेंजर. ठीक है. बट यहाँ पे अगर मैं कंसिडरेशन पे नहीं हूँ या मैं कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हूँ पर फिर भी मैं केस फाइल कर सकती हूँ. इज इट क्लियर? एक्सेप्शंस करने अपने को ये रूल के, तो मेरे साथ एक्सेप्शन समझो. सबसे पहले इन द केस ऑफ ट्रस्ट. इन द केस ऑफ ट्रस्ट में सपोज अगर मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, और वो बैंक अकाउंट मेरे डेथ के बाद बैंक वाले उस अकाउंट को सील कर देंगे. जब तक मेरा नॉमिनी नहीं मिल जाता है तब तक वो अकाउंट सील हो जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज बैंक गोइंग टू डू? बैंक विल एक्ट एज ए ट्रस्ट. ठीक है. और मेरा जो नॉमिनी है अगर उसको मेरा पैसा नहीं मिल रहा है तो वो बैंक के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है. यहाँ पे मैं प्रॉमिसर थी, बैंक वाला प्रॉमिसी था और जो नॉमिनी है वो एनी अदर पर्सन था.
तो अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पे स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी वो सू कर सकता है, ठीक है, कि बैंक वाला मेरे प्रिंसिपल बंदे का जो भी पैसा है वो मेरे को नहीं दे रहा है, तो द नॉमिनी कैन गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट द बैंक अगर बैंक उसका पैसा रिलीज़ नहीं कर रहा है तो। सो दिस इज़ बाय ट्रस्ट। ओके, सेकेंड, फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट में सब कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं होता है फैमिली के अंदर या पार्टीज़ के बीच में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली है तो बेटों के लिए राइट है उतना ही अभी बेटियों के लिए भी राइट है। इवन द गर्ल्स आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। तो अगर लड़कियों को भी अगर हम लोग उतना इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो आगे चल के सपोज अगर तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है बट स्टिल द गर्ल कैन गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट द बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और अपना जो क्लेम है, अपना जो शेयर है वो उनसे वो क्लेम कर सकती है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। ठीक है, कि दो द गर्ल वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे भी उसके फादर ने, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने या उसके अंकल ने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं छोड़ा था या प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं छोड़ा था, still she can go and file a case, okay, because she is a third person, she is a stranger, but still she has a right to go and file a case against the family members कि मुझे भी मेरे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, इज इट क्लियर एवरीबडी? बेटा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स में शुरुआत में कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, बट इट इज़ अंडरस्टूड इफ देर इज अ डिवोर्स बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, इज इट क्लियर? The husband can claim the amount, I'm sorry, the wife can claim the amount from the property of the husband. Is it clear? That is rightly called as an alimony amount, which the husband has to pay after he is taking divorce to the wife. ठीक है? I repeat, family settlement again. It says कि if there is a husband and wife and they have entered into a contract, marital relationship, and अचानक से one fine day if they are divorced, the husband is bound to compensate the wife for the same. Is it clear? मतलब हस्बैंड को उसके वाइफ को एलिमनी देना ही पड़ेगा। तो ये पहले से उसने शादी के टाइम पे कंसिडरेशन नहीं दिया था कि भाई मेरा तेरे से डिवोर्स हुआ तो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, कोई कंसिडरेशन पहले से नहीं देता, वो शादी नहीं करेगी। सो ये नहीं होने के बावजूद भी तुमको देना पड़ेगा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल का मतलब है मैंने एक्स को पैसा दिया और बोला कि वाई को जाके पे कर, तो इफ़ आई एम गिविंग इट टू एक्स एंड टेलिंग हिम कि यू गो एंड पे वाई फॉर द सेम वट एवर इट इज़, तो यहाँ पे एक्स जो होगा, इज इट क्लियर, वाई जो होगा वो अपने लिए एस्टॉपल होगा। फाइन, तो यहाँ पे वाई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे ही कैन सू अपॉन इट, या तो वो मुझसे क्लेम कर सकता है या तो वो एक्स से क्लेम कर सकता है। सो दैट इज़ नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। कोविनेंट का मतलब होता है कि आपके जगह पर जो बंदा रहता है उसको कोविनेंट बोलते हैं, ठीक है। सो इट सेज इन द केस ऑफ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड में, अगर वो आपके जगह पर रहता है और अगर आपने उसको बोला है कि मैं ये घर को थोड़ा ठीक करके दूंगा, तो तुझे तेरे प्रॉमिस को फुलफिल करना ही पड़ेगा, तुझे उसका घर ठीक करके ही देना पड़ेगा, बिकॉज वो तेरे घर पे रह रहा है और ऑब्वियसली उसको तो राइट नहीं है ठीक करने का, तो वो तुझे ही करके देना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज एंटर थ्रू एन एजेंट। अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड एजेंट इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज़ कंसिडरेशन, उसमें उन लोगों के बीच में कुछ भी लिखा हुआ नहीं। बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी इज़ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, जहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट के लिए बाइंड होता है और एजेंट प्रिंसिपल के लिए बाइंड होता है, या तो वो थर्ड पार्टी के लिए भी बाइंड हो सकता है, बिकॉज प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट थर्ड पार्टी के साथ डील करता है, बराबर। और अगर थर्ड पार्टी के साथ तुम कुछ भी गलत करते हो, ठीक है, तो एजेंट की गलती की सज़ा प्रिंसिपल को भुगतनी पड़ सकती है। फाइन, so this is suit by a third party to a contract. I am revising all the things again with you. The first is in the case of trust, the second is in the case of family settlement, the third is marriage contracts, next is assignment of contract, next is acknowledgement or estoppel, फिर आएगा covenant running with the land, and the last is contracts entered through an agent. तो ये सारे जो टाइप्स है या केसेस है, these are the sued by a third party to a contract, मतलब they are stranger to the contract but still they can sue upon it. Is it okay everybody? Students, we are left with one more thing of consideration, that is validity of an agreement without consideration. Consideration का एक और पार्ट बाकी है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में कवर अप करूँगी, ठीक है। टेक केयर एवरीबडी, बाय। एंड इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग इन टुडे सेशन, आप मार्क करके रखो, जब हम लोग फिजिकली मिलेंगे तब हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। बाय एवरीबडी, टेक केयर।